हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिस्ट से। तो आज का देखते हैं हम। तो आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। ईरान कैंसल फ्लाइट्स फ्रॉम ऑल इट्स एयरपोर्ट्स, इजराइल बॉम्ब्स Beirut in its heaviest attack, द स्टैंडर्ड मॉडल्स आर पिक्ड बाय IF चौखंबा मासिव। ठीक है। म्यूजू मीट्स PM टुडे, सेज इंडिया अवेयर ऑफ फिजिकल सिचुएशन विल ईज बर्डन। मोहम्मद मुइजू कौन है? मालदीव्स प्रेसिडेंट, ओके। Miraculous standard duo rescued after 60 hours with help from French climbers. ठीक है। More Indians traveling abroad but arrivals set to hit pre-COVID levels. ठीक है। Parties to experts, no clarity on nominated MLAs in J&K House. 20 years, नहीं। 1.5 crore highs to dead men. UP gang. Don't believe it for Rose Valley investors. The fan of hope as refund process begins. ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। फर्स्ट पेज में तो इतना कुछ खास नहीं है। Concepils. संजीव। 2024 मोस्ट हेवी रेनफॉल। और कुछ है क्या? मेडिकल काउंसिल ग्रीवेंशियल एक्सपीडिएट्स। चेंबूर में आग लग गई। ठीक है। तो सब बैंकिंग और बेस्ट बैंक्स अवार्ड्स। ठीक है। लाड़की योजना, ये क्या है? Tragedy strikes IF event in Chennai, 5 dead, scores hospitalized, 12 lakh return up। अभी देखते हैं थोड़ा सा। केजरीवाल High Court orders file under POCSO. U-turn on railway recruitment center restores engineering services exam. Amit talk why Renapol verdict tomorrow is important. ठीक है। Year of fighting dangerously. Israel and Iran must accept the need for fundamental reject elimination fantasies. History laughs at both the victim and the aggressor. As Middle East stares at a great war, India's stakes in the region have never been as large. Silence is no longer an option. ठीक है। जो इसके जो है बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम ज्यादा नहीं उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें टाइम भी कंज्यूम होता है और इसमें कुछ ऐसा फैक्चुअल इतना कुछ निकल के नहीं आता है। हम लगा तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस का हम लास्ट में जब एग्जाम्स नजदीक आएंगे, यूपीएससी अपना सॉरी मेंस के, तब मैं एक क्रैश कोर्स निकाल लूंगा आईआर के ऊपर कि पूरा मतलब क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है। हमें ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री में जाना ही नहीं कि अभी ये ठंडे पड़ रहे, ये अभी गर्म माहौल है तो अभी ये इस पर ज्यादा चर्चा आएगी। थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। अगर PSIR ऑप्शनल है तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट अभी जो भी हैपनिंग्स हो रहे हैं उसके थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन रखनी ही चाहिए आप। Under pressure, global factors have weighed down the market's outcome of elections. MPC and firm results could influence stock prices. Stock prices इतना है क्या? तो नहीं है. The three reasons why Gandhi would be against consumers and encourage Indians names. Great men, big deals. Okay. Violent means ठीक है, violence और इसके ऊपर तो नहीं है ज्यादा। Too many walls, few bridges. Global wars of English that defined the world order since World War II have collapsed. Nothing has replaced it yet. The global rules of engagement that defined the world wars order since World War II have collapsed. Nothing has replaced it. Therefore, every country is going down its own thing. Military had economic superiority has lost its coercive power. It is no longer the determinant of influence. Take, for example, Israel. It is dependent on the US but has not deterred Netanyahu from ignoring President Joe Biden's call for restraint. Sure, Israel has the support of the Jewish lobby,
And this does the give the premium latitude, but his attitude is also by the fact that the international relations have lost their moorings. सब आयर के ऊपर ही है आज तो। भाई इवन टेक्नोक्रेट पॉलिटिशियन इज फोर्स टू प्ले द बाय द हिंदुत्व प्लेबुक। नहीं, जरूरत नहीं है इतना। स्टोरीज ऑफ हेल्थ एंड होप। आयुष्मान भारत सेव लाइव्स रिड्यूसेस हेल्थ रिलेटेड। आयुष्मान भारत के रिलेटेड अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया ये। आयुष्मान भारत के ऊपर पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए आपने। मैं पढ़ा लूंगा, डोंट वरी। अ ईयर ऑफ वॉर इन वेस्ट एशिया, व्हाट इज द व्यू फ्रॉम दिल्ली। इसराइल के ऊपर क्या है, अरब स्टेट्स के ऊपर क्या है, अभी देखो ये मोटा मोटा तौर पर दिया है तो हमें ये पढ़ना चाहिए। देखो एक्सप्लेन पेज में थोड़ा सा अच्छे से इन्होंने पूरा क्लियरली बताया रहता है कि सिचुएशन कैसी चल रही है, ठीक है, इन शॉर्ट में बताया रहता है। और ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अभी इसराइल के आजू बाजू के स्टेट्स कौन से, जॉर्डन के कौन से, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट में अभी ईरान, ईरान के आजू बाजू में स्टेट्स कौन से, स्टेट्स इन द सेंस कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एटलीस्ट उतना तो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ईवन भी चल रहा है, वेस्ट बैंक, इसराइल, गाजा, तेल अवीव, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये पूरा जो वाटर बॉडीज है, ऊपर ब्लैक सी है या दूसरी सी है, कैस्पियन सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर कौन सा है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ एडन है। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इवन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम कोशिश करते हैं ये आर्टिकल पढ़ने की। West Asia crisis that began with the terrorist attacks by Hamas on October 7, 2023 has now continued for a year. 7 अक्टूबर मतलब एक साल हो गया इनको। Israel's ground operation and aerial bombardment in Gaza and Lebanon have by conservative estimates killed more than 41,000 people. Gaza is all but flattened, but Hamas is believed to be still holding 97 of the original 251 hostages. Attacks here what the situation looks like from Israel, Washington and other western ठीक है, अभी देखते हैं हम अलग अलग इसमें क्या क्या सिचुएशन है। Benjamin Netanyahu, Prime Minister, whose personal popularity was its nadir before the attacks, has vowed to wipe Hamas off the face of the earth. भाई साहब सीधा अर्थ से वाइप ऑफ ही करना है इनको। Israel Defense Forces have since extracted a grossly disproportionate death toll in Gaza. थोड़ा और जूम कर दूं क्या? Israel also sought to press its military advantage against the other Iran-backed axis of resistance group, especially Lebanon-based Hezbollah and the Yemen-based Houthis, who began exchanging rocket and missile attacks with it last year. The Houthi attacks disrupted international shipping in the Red Sea and imposed economic costs on countries far beyond the theater of conflict. In retaliation, Israel has carried out strikes in Syria and Yemen, apart from launching a fresh attack on Lebanon. Even as it has continued ground operations in Gaza, ignoring a call for ceasefire. अभी देखिए कौन किस पर क्या अटैक कर रहा है वो मैटर नहीं कर रहा। अभी इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं यार कि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं बाद में। देखो ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है कि भाई इसने ऐसा किया, ये इसने ऐसा किया, रिटेलिएशन किया। International opinion in favor of Palestinian statehood has strengthened over the past year, bolstered by an International Court of Justice advisory opinion deeming Israel occupation illegal. However, this same period, Israel has moved farther away from accepting the two-state solution and is now perhaps more opposed to it than ever before. In July, the Israeli Knesset ठीक है, मतलब ये ऊपर ऊपर ही बता रहे हैं कि भाई क्या चल क्या रहा है। अरब स्टेट्स में भी वही हाल रहेगा कि ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चल रहा है। मतलब ये इशू भी वैसे ही चलेगा। हम जरा इसमें देखते हैं ये क्या लिखा है। चलो ये देखते हैं, सेटलमेंट्स की बात करते हैं। ये जो बॉक्स में दिया है वो देखते हैं हम। Spoke to Netanyahu on the phone booth by expressing concern and offered a solution. Modi also spoke to President Mohammed Abbas of Palestine, reiterating India's commitment to the two-state solution. India's blossoming relationship with Israel has not led to New Delhi being openly supportive to the Israel position on Gaza or Lebanon. Rather, India has chosen to silo terrorism as a distinct issue which needs to be condemned and mitigated. This has allowed New Delhi to express sympathy and support for Israel after the terrorist attacks while refraining from backing its own match. ठीक है, वोकल हाईलाइटिंग अभी किनसे मिले भाई? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंतोनियो। Enduring peace and two-state solution based on the recognition.
तो टू स्टेट सोल्यूशन तो नहीं बोल रहे ये भाई. इंडिया इज कॉन्स्टेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ रिकरिंग यूएनजीए रेजोल्यूशंस कॉलिंग फॉर इजरायली विड्रॉल फ्रॉम ऑक्यूपेड टेरिटरीज. हम इसराइल को बोल रहे भाई तुम विड्रॉल कर दो. इट्स रिसेंट एब्स्टिनेशन वाज ट्रिगर्ड बाय, ठीक है, प्रायर टू द न्यू क्राइसिस इंडिया सॉट टू स्पेयर इट द एफर्ट टू कैपिटलाइज ऑन. वही चल रहा है. देखो, बॉल बाय बॉल कमेंट्री हमें पढ़ना ही नहीं. अभी ये एक इंपॉर्टेंट है, रीजन थ्रू प्लान्ड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी देखिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता क्या है, ये लगा तो आप नोट्स में साइड में लिख सकते हो. वाइल अभी देखते हैं हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. अभी ये होता क्या है हमें देखना है. G20 समिट में ये साइन किया गया था न्यू दिल्ली में, विच होल्ड्स जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है हमारे लिए. मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, आईएमईसी. तो ये प्रपोज्ड है कंसिस्ट में. इसमें क्या क्या रहेगा अभी देखते हैं कौन से रीजन से. रेल रोड शिफ्ट टू रेल नेटवर्क्स और रोड ट्रांसपोर्ट रूट, दो कॉरिडोर से. कौन से ईस्ट कॉरिडोर है, नॉर्दर्न कॉरिडोर है. इंडिया टू अरेबियन गल्फ है, गल्फ टू यूरोप है. अभी देख सकते हैं हम, ये मुंबई से इधर गए यूए से, फिर सऊदी अरेबिया के हराद, रियाद, अल हदीद, फिर इसराइल का हाइफा और पिरियस से ग्रीस. मतलब ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये है, ये रूट है. मतलब इसमें सी भी है और रेल भी है, इवन रोड भी है. ठीक है, रोड, रेल और सी तीनों भी है इसमें. बस एयर नहीं है मेरे हिसाब से. एयर वाला, हाँ एयर है ना, नहीं एयर नहीं है इसमें. ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एयर रूट भी रहेगा इसमें, एयर वाला नहीं है. इसमें क्या क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी केबल रहेगा, हाइड्रोजन पाइपलाइन रहेगा, हाई स्पीड डाटा केबल रहेगा ये कॉरिडोर में. और इसमें सिग्नेटरीज कौन से इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी है. और इसमें कौन से पोर्ट्स कनेक्टेड करने हैं, इंडिया का मुंद्रा, कांडला, जवाहरलाल नेहरू, जीएनपीटी, नवी मुंबई वाला. मिडल ईस्ट में कौन से ही, तो ये सब सारे हैं. रेलवे लाइन हाइफा, इसराइल का हाइफा पोर्ट है. यूरोप का ये पोर्ट है पीरस पोर्ट. मेसिना इटली का है. मर्सेल फ्रांस का है. ऑब्जेक्टिव वही है कि कॉम्प्रेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रहेगा, एनहांस ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी और लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेगा. जियो पॉलिटिकल क्या है वो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये आप पढ़ सकते हो ऐसे. और कोई एक दो आर्टिकल देख सकते हैं हम. और एक दो आर्टिकल देखेंगे और फिर बस करेंगे. इसमें और क्या है, क्या अलग कुछ दिया है क्या, वही दिया है मेरे हिसाब से. रेड रोल रेल रे, अरे यार कितने पापड़ डालते हैं. ये मैप दिया है शायद, मैप भी इतना खराब दिया है, छोड़ो. वही है, ईस्ट कॉरिडोर है, नॉर्दर्न कॉरिडोर है. इसमें अरेबियन गल्फ टू यूरोप है और इंडिया से अरेबियन गल्फ है. ईस्ट वाला अरेबियन से, ये देख सकते हो, अरेबियन से गल्फ तक है. और फिर ये गल्फ से लेके यूरोप तक है नॉर्दर्न कॉरिडोर. ईस्टर्न और नॉर्दर्न दो कॉरिडोर्स में जिन्होंने डिवाइड किया है. बाकी इसमें क्या इम्पैक्ट क्या है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो ये रुक सकता है पूरा प्रोजेक्ट. होने वाला भी है या नहीं पता नहीं अभी, क्योंकि इसराइल के हाइफा से एयरपोर्ट से जा रहा है ये. और रेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में है. ठीक है, वो पढ़ सकते हैं. ठीक है, इतना काफी है अभी. वाइल्ड कैरेक्टर, बाकी गाजा, लेबनान. देखा, अभी देखो इतना सब पढ़ा हमने, इसमें से क्या निकल के आ रहा है. अभी इसमें से क्या पूछेंगे कि भाई किसने अटैक किया किस पर, इसलिए मैं ज्यादा रेफर ही नहीं करता ये इंटरनेशनल के न्यूज. अभी कौन क्या कर रहा है बस थोड़ा बहुत, ये अगर कुछ प्लान वगैरह है तो फिर अलग बात है. ठीक है, ये आप देख सकते हो. बाकी अभी देखते हैं दूसरे. कोशिश की है हमने पढ़ने की, पर ये थोड़ा बॉल बाय बॉल कमेंट्री लग रहा है मुझे. अभी इसराइल ने इन्वेड क्यों किया लेबनान पे, एंड व्हाट टू मेक ऑफ द वॉर सो फार. ठीक है, हम पढ़ना चाहिए कि क्यों भाई अटैक क्यों कर रहे लेबनान के ऊपर, क्या रख सकता है. व्हाई डिड इसराइल चूज टू इन्वेड लेबनान नाउ. तो फॉर इसराइल देयर हैज नेवर बीन अ लार्जर जियोलॉजिकल विंडो टू प्रेस अगेंस्ट हिजबुल्लाह, द ईरान बैक शिया मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ग्रुप. अभी देखो, हिजबुल्लाह जो है वो ईरान बैक्ड है, मतलब एक शिया मिलिट्री पॉलिटिकल ग्रुप है, तो उनको दबाने के लिए ये लेबनान के ऊपर अटैक कर रहे हैं. Through Israel's year-long war in Gaza, the US has provided steady tailwinds in the form of sustained arms supplies despite some political dithering in the region. Israel's new Arab partners have restricted themselves to rhetorical criticism. ठीक है. With Iran's new moderate government focused on economic recovery and sanctions relief by engaging the West,
Israel's first major gambit was to kill Ismail Haniyeh, the political leader of Hamas. ठीक है, इनको मारने के लिए ये सब चल रहा था। हाँ, इस्माइल हनीये के लिए। बाकी स्ट्रेटेजिक पेशेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, तो ठीक है। वेयर डज हिजबुल्लाह स्टैंड इन द करंट सिचुएशन? अभी देखो ये कोई क्यों मार रहा है, क्या मार रहा है, अभी देखो हमारी, देखो ये कैसा रहता है, अब ये दोनों में लड़ाई हो रही है तो हमारा इस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये क्वेश्चन आएगा यूपीएससी मेंस में। अब ये क्यों दोनों लड़ रहे हैं वो ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, तो हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गया है। बाकी और कुछ देखते हैं हम। आयुष्मान भारत पर हमें क्या पढ़ना है अभी, इसमें थोड़ा बहुत देख सकते हैं पर इतना नहीं इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को। कुछ रहा तो मैं इसके ऊपर एक बड़ा इशू, अलग से इशू बनाऊंगा जल्दी, इशू के इस पर भी हम आएंगे, एक एक इशू मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। प्रीलिम्स का जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स का हम ये प्लस एक मंथली मैगजीन हम पूरा अच्छे से कर लेंगे। ट्रेड नॉट जस्ट ग्लोबलाइज्ड बट इट्स ऑल्सो न्यू वेपनाइज्ड। अभी वही तो प्रॉब्लम है, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। कुछ कुछ नए टर्म्स रहते हैं ना, प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या, हमारे जो अभी देखो हम यूएसए है, यूएसए क्या बोलेगा कि भाई पहले हमारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी हम दूसरों को भला देखेंगे, तो ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इनको बाहर से। तो ये हो गया कि भाई हमारे लोकल लोगों को ही हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देना है, मतलब क्या हो गया, जॉब्स वगैरह हो गई, तो हम पहले लोकल लोगों को प्रेफरेंस देंगे, बाकी का सब बाकी के बाद में। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर रहता है ये पूरा। पर ये अच्छा है नहीं अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, इस पर भी एक इशू का प्रॉब्लम होता है। और ये जितना राइज होगा उतना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हाई स्केल पर चल रहा है हमारा। अभी देखो अगर अगर सैमसंग अगर बंद गिर गया ना पूरा, तो एप्पल भी बंद गिरेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके चिप्स आते हैं, कैमरे के क्वालिटी आते हैं, बहुत सारे जो मेजर मेजर इक्विपमेंट्स है वो सैमसंग प्रोवाइड करता है एप्पल को। अगर ये सैमसंग ही बंद गिर गया तो फिर एप्पल भी बंद गिर जाएगा, तो समझ सकते हो आप। तो वैसा है। आरबीआई पॉलिसी वाई एमपीसी में कीप रेपो रेट स्टडी बट कुड कट इन दिसंबर। अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस वगैरह क्या है देखेंगे बाद में, इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा एक अलग लेक्चर हो जाएगा इकोनॉमिक्स की, ये रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई पॉलिसी होती क्या है। और कभी लगा तो मैं अभी एक नया प्रीलिम्स कोर्स निकाल रहा हूँ 7 मंथ्स के लिए, तो आप वो देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो एनरोल करने के लिए, तो बस 30 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो उसमें मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर पूरा सिखाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में पूरा प्लानिंग किया है मैंने, लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। इसराइल बॉम्ब्स बेरेट इन हेवी अटैक लॉन्चेस न्यू इनकर्जन। भाई साहब बहुत डेंजर वाला चल रहा है ये तो। ठीक है भाई, मस्क जी आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, भाई जितना चाहिए बहुत बच गया, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गया था इन पे ऊपर, बहुत बच गए। यूएस इज फेसिस लैंग्वेज बैरियर स्टूडेंट ट्रॉमा ऑफ द मार्क बट ऑफ द कलर। देखो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या, देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा उतना ही हम पढ़ेंगे, अगर कुछ छूट भी जाता है तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे सोर्सेस है हमारे पास जिस पर हमें कवर कर सकते हैं। अभी मैंने भी थोड़ा चेस खेलना बंद कर दिया है, क्योंकि थोड़ा इधर फोकस कर रहा हूँ मैं, चेस में बहुत ज्यादा एनर्जी आती। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।